Assalamu alaikum student. Today I am going to start chapter number 1 of physics, that is introduction to physics. Okay, before start this chapter I would like to tell you about the definition of science. So what is the definition of science? The definition of science is the systematic study of nature. Means नेचर के बारे में स्टडी करना, नेचर के सिस्टम के बारे में स्टडी करना कि किस तरह सिस्टम सर्वाइव कर रहा है नेचर का. सो साइंस ही की मेन ब्रांच है फिज़िक्स. सो द डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स इज़ इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with study the matter, energy and their interaction. मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करना फिज़िक्स कहलाता है. ठीक है, कि हाउ मैटर चेंज इनटू एनर्जी एंड एनर्जी चेंज इनटू मैटर. और आपको अपनी डेली रूटीन में बहुत सारे आपको ऐसी टर्म्स नज़र आएंगी, ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ नज़र आएंगी जो हम आजकल के दौर में कि हम इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. ये हमारी ज़रूरत का एक हिस्सा बन चुकी हैं. ठीक है. सो the rapid progress in science during the recent years has become possible due to discoveries and invention in the field of physics. The technologies are the application of scientists. Most of the techniques of our modern society throughout the world are related to physics. For example, a car is made on principles of mechanics, like it's moving, and a refrigerator is based on the principle of thermodynamics. So in our daily routine we can't see anything without the technology of physics. Okay, in our daily life we hardly find a device where the life is not involved. Okay, consider pulley. You know what is pulley? Pulley is used to lift any heavy object or load. We can easily lift. And we can say electricity. Electricity is used not only to provide heat or light. It also it's used in running fans, electronic motors and etc. So it is physics. Without physics in this age, in this area and in this period we can't survive. Okay student, I repeat the definition of physics. So what is the definition of physics? It is the branch of science that deals with the matter, energy and their interaction. Okay, so I think you learned the definition of physics. Now start the branches of physics. Here you can see the branches of physics like heat, light, force, magnetism, inertia, friction, gravity, sound, electricity, atoms. And you also can see the others one like mechanics. Okay, so it's also the branch of physics. आपने फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस आपकी बुक में मौजूद हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी मौजूद हैं फ़िज़िक्स की ब्रांचेस, लेकिन हम क्या हैं सिलेक्टेड हम डिस्कस कर रहे हैं. इस बुक में भी आप लोगों की जो बुक हैं, आप फेडरल बुक को फॉलो करें चाहे आप सिंध बुक को फॉलो करें, तो आपकी भी एक सिलेक्टेड आप लोगों को ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स वहाँ स्टडी करने को मिलती हैं. ठीक है. सो नंबर 1 इज़ मैकेनिक्स. व्हाट इज़ मैकेनिक्स? It is the study of motion of object and its cause and effect. Like moving objects के बारे में स्टडी करना मैकेनिक्स होता है कि क्यों मूव कर रही है, वो किस कॉज की बिहाफ पे मूव कर रही है, क्या उसकी मूविंग के इफ़ेक्ट्स हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स इज़ इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉज एंड इफ़ेक्ट्स. ठीक है. तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करना मैकेनिक्स में आता है. Next is electricity and magnetism. So what is electricity and magnetism? It is also the branch of physics, you know. So it is the branch of physics
It is a study of the charges at rest and in motion and their effects and their relationship with magnetism. ओके, मीन्स हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, इससे जो बनने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं और उसको क्या रिलेशन है और किस तरह वो पूरा हमारे हेल्प आउट दे रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज एटॉमिक फिजिक्स. इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम. मीन्स एटम के बारे में स्टडी करना, एटम के बारे में स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना एटॉमिक फिजिक्स में आता है. ठीक है. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिजिक्स. सो व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स? इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई. मीन्स हमें क्या करना पता है, न्यूक्लियाई ऑफ एटम के बारे में स्टडी करना. आप लोगों को पता है एटम की 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो जो न्यूट्रॉन और हमारा प्रोटॉन है वो क्या कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं. तो अगर हम क्या करें, आप ज़रा सी बात, वो हैवी पार्ट भी कहलाता है आपको एटम का. तो उससे अब निकलने वाली रेडिएशन भी होती हैं, किस तरह वो रेडिएशन निकल रही होती है, लाइक एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे, गैमा रे. ठीक है. तो हम न्यूक्लियाई ऑफ एटम के बारे में स्टडी करना कि किस तरह मतलब पूरा हमारी मतलब किस तरह वो प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह वो बिहेव कर रहा है. तो हम इस ब्रांच में क्या करते हैं कि न्यूक्लियाई ऑफ एटम के बारे में स्टडी करना. ठीक है. दैट इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स. ओके. नेक्स्ट इज प्लाज्मा फिजिक्स. इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. मीन्स लाइक हम लोग क्या करते हैं, आयनिक स्टेट ऑफ हाईली आयनाइज्ड के बारे में पढ़ना है, हाईली आयनाइज्ड ऑफ एटम के बारे में स्टडी करना. दिस इज प्लाज्मा फिजिक्स. नेक्स्ट इज जियोफिजिक्स. सो व्हाट इज जियोफिजिक्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. मीन्स अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना हमारा जियोफिजिक्स में आता है. Okay, next is biophysics. Biophysics is also the branch of science. In this branch of science, we discuss about the relationship of bio and physics. Like आप लोगों को पता है डेली रूटीन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को नज़र आती हैं जो क्या है फिज़िक्स की बदौलत है, लेकिन आपकी लाइफ में वो क्या है, वो एक इंसानी या किसी भी लिविंग थिंग की क्या है वो हेल्प आउट दे रहे हैं. लाइक अगर आप देखें ऑपरेशन थिएटर में आपको बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स नज़र आते हैं जो क्या करते हैं, बनी हुई फिज़िक्स की बदौलत हैं, लेकिन वो उसका इस्तेमाल लाइफ पर हो रहा है. ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको मेरे आज के लेक्चर में फ़िज़िक्स की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस समझ आई होगी. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.